There is this 9-year-old girl from Delhi. She does a 7-step skincare routine after coming from her school just to impress her peers on social media. Vitamin C serum, retinol moisturizer, niacinamide eye cream. And surprisingly, she did not even learn these from her mother. She learned it from a 60-second Instagram video. Last week, her mother brought her to a dermatologist, not for pimples or allergy, but for chemical burns that were visible on her face. And here's what nobody is telling you. India's teenage skincare market is already worth nearly rupees 5,000 crores and is on track to cross rupees 9,400 crore by 2034. And these are not adults who are buying anti-aging creams, but parents unknowingly buying retinol and glycolic acid for children who haven't even hit puberty. A first of its kind study found girls between the ages 7 and 18 using an average of 6 skincare products daily with routines containing an average of 11 ingredients that can cause irritation, allergies and long-term skin damage. Products designed to reverse aging in a 40-year-old are being applied to the faces of 8-year-olds who have nothing to reverse. Research now shows that children using adult cosmetics have a higher risk of developing skin allergies for life. And you know what? The brands already know this. And today, our guest is Kanika Chopra, founder of Mishmash, an Ayurvedic skincare brand. The question she's going to answer is, what is actually happening to your child's skin and who exactly is responsible for it? Kanika, firstly, you are not an expert. You're not a dermat. You're not from the medical background. And you are talking about something which is very, very sensitive to a very big community, which is called parents. Why should they care about what you have created, and why should they listen to you? Yeah, so that's absolutely true. I am not a doctor. I am an engineer, BTech and an MTech in biotechnology. I worked for 15 years with multiple pharma companies. At the same point of time, मेरा जो core role रहा है ना, it's a research-based role. So whatever I am talking about is coming from two places. One, जो मैंने घर पे अपने parents के साथ experience किया है, the curiosity that I have had for every products that we have used and how my life has been. Second is comes from a place where deep research goes into each and everything that I am talking to you about. मतलब when I wanted to make a product, I didn't just go कि यार चलो आज प्रोडक्ट बनाते हैं. उस पे 5-6 महीने पूरा समझ के काम किया गया है कि क्यों बनाना है. इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, मेरे को नया प्रोडक्ट क्यों बनाना है? क्या ऐसा गैप है जो वो लोग नहीं कर रहे? So the answer if you ask me is like number one, I'm a very deep researcher person. I work with Ayurvedic consultants on a daily basis. I actually am born in a family जहाँ पे skin की बहुत importance दी गई थी from the very beginning because of the Ayurveda background plus because मेरी skin काफी खराब थी. So I come from that experience and that's why जो हमारी products हैं. Now coming to the part why parents should trust Mishmash. Parents should trust Mishmash because it's coming from a place where we are solving the problem of a kid's growing skin. And हम कोई नई चीज नहीं कर रहे. आयुर्वेदा सबको पता है. आयुर्वेदा पे सबको ट्रस्ट है. We are just making exceptional Ayurveda for growing skin using science-backed information that is making the kids have that portion, have that संतुलन and have that रक्षा जो एक्चुअली हमें उनको देनी चाहिए. So मेरे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो आयुष मिनिस्ट्री अप्रूव्ड फॉर्मुलेशंस हैं. तो हम जब ये बना रहे थे वी जस्ट डिडंट वांटेड टू स्टॉप एट आयुर्वेदिक होते सब करते हैं, बट ही वेंट वन स्टेप फर्दर कि फॉर्मुलेशन को भी हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से अप्रूव कराएंगे. तो हमारे सारे प्रोडक्ट जो भी मार्केट में आते हैं उनकी फॉर्मुलेशन हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से अप्रूव कराते हैं. और उसका प्राइमरी रीजन क्या होता है कि उनके पास जो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स है दे कैन सर्टिफाई कि जो हम कर रहे हैं वो गलत नहीं है. नंबर वन, देयर आर टाइम्स यू गेट क्वेश्चंस, यू हैव टू बैक इट अप विद लॉट ऑफ साइंस. तो इट मेक्स अस as a more ethical and a more confident in terms of the formulations that we say are good for the kids. Mindset part which you were able to surpass because ये एक बहुत बड़ा mindset वाला game है. I think entrepreneurship is more to do with the psychology than to do with the actual grind because वो एक preparation चाहिए था, mental preparation. So I'm sure that you are an Indian and आपको मालूम है कि working profession suddenly एक ऐसी चीज़ करने की सोचता है तो लोग उसको पागल बोलते हैं. Did you have any kind of this kind of an experience? Did people encourage you or were there people who were discouraging you? फाउंडर्स की जर्नी एक लोनली जर्नी होती है बिकॉज आपको पता है कि आप जो बना रहे हो शायद वो बहुत अच्छा है बट सब लोग को समझ नहीं आएगा फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम
सेम जर्नी हमारे साथ भी थी, मेरे साथ भी थी, एंड ऑल्सो माई फेलो को फाउंडर्स के साथ भी थी. बट आई वॉज लकी दैट दोज पीपल ट्रस्टेड मी विद वॉट द आइडिया दैट propped up and we started to work on it. But Indians specifically, and जो आपका ecosystem होता है ना, friends, family and everybody, they don't trust you. वो पहले से ही आपको बोल देते हैं अरे फेल हो जाओगे. So 99% of the people don't even want to try. मेरे तो जनरेशन में मतलब I've seen कि जहाँ पे पापा ने फैक्ट्री बना के बंद किए थी, तो मैंने जब अपने पेरेंट्स से बोला मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि चुप करके बैठी रहो, तुम जहाँ हो बहुत अच्छा कर रही हो, यू आर डूइंग रियली गुड इन योर कॉर्पोरेट करियर, डोंट टेक दैट रिस्क. You loved your job also. I loved my job. And you also were having a very good salary. Yeah. It was a very good salary. I worked with amazing companies. I had an amazing opportunity to learn. मैंने इतना learn किया है अपने career में that I felt very privileged. I was always curious. I used to always question कि क्यों नहीं. मेरे ideas out of box होते थे. तो मतलब मेरे को ये तो समझ थी मेरे को कि थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज होते हैं, जरूरी नहीं है सही हो या गलत हो, कुछ भी हो सकता है. सो जब खुद के फैमिली ने मना कर दिया, एंड यू नो आई वॉज ऑल्सो वेरी डाउटफुल एंड एवरीथिंग, बट देन आई थॉट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम एंड आई लिसन टू द फैक्ट कि यार हार्म क्या होगा. लाइक यू नो एक स्पेसिफिक कैपिटल है जो मैंने अपनी खुद की लगाई थी स्टार्टिंग में. आई नेवर वेंट टू इन्वेस्टर्स इनिशियली. काफ़ी सारे फाउंडर्स क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि कोई पैसा ही देगा तभी मेरा ड्रीम आगे होगा. मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि ये तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता. अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं किसी और को कैसे बोलूं कि मेरे सपने पे आप पैसा लगाओ. पहले क्या मैं अपनी हार्ड अर्नड मनी लगा सकती हूँ ऑन मी टू ट्रस्ट माई सेल्फ कि यार आई एम नॉट क्रेजी. सो दैट्स व्हाट आई डिड. लाइक कि हम लोगों ने खुद का इन्वेस्टमेंट किया था टू मेक श्योर कि वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ जाए कि यार ये प्रोडक्ट है, हम सही जा रहे हैं. कैटेगरी एजुकेशन की ज़रूरत है, एजुकेशन कर देंगे, लेकिन मार्केट रेडी है टू बाई इट. व्हेन इट हैपेंड तो इन्वेस्टर्स भी साथ में आए. तो आई थिंक फाउंडर्स माइंडसेट में होना चाहिए कि व्हाट आई फेल्ट वाज वेरी डिफरेंट इज, अगर क्या आप अपने सपनों पे यू आर रेडी टू पुट वट एवर इन इट, योर एनर्जी, योर कैपिटल, योर पीस ऑफ माइंड, इफ दैट्स दी 3 अगर है ना, तो आप कुछ कर सकते हो. एंड इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट. Anybody can have the same idea. It is very easy. Coming to ideas, people every single time they have ideas. किसी को कहीं भी idea आ जाता है. What is the difference between a person having an idea and person who actually got that idea into reality? In your case, that idea became a reality. That is the reason I'm sitting here. बट बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज रहते हैं, वो अगले दिन आइडिया चला जाता है, फिर कोई और करता है और कहता है कि देखो मेरा आइडिया कितना सही था, इसने कर लिया, मेरा आइडिया कॉपी हो गई. एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं. सो व्हाट वर्क फॉर, व्हाट इज द मैसेज फॉर दोज पीपल हु आर हैविंग आइडियाज बट दे आर नॉट टेकिंग एक्शन? सो द ओनली मैसेज वुड बी कि ट्राई करो. पहले तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लेट्स से अगर आज की डेट में आप जोमेटो जैसा आइडिया लाते हो तो इट्स अ कॉपी थिंग. बट अगर आप उसमें कुछ भी मोट आपने कुछ कर दिया विच इज़ वेरी डिफरेंट, बिकॉज जोमेटो टेक्स अ स्पेसिफिक परसेंटेज, कट लेता है. अगर आप ऐसा बिना कट के मॉडल बनाना चाहते हो, सो मे बी योर आइडिया कैन वर्क. सो लाइक द ऑब्जेक्टिव हेयर इज कि आइडेंटिफाई कि आपके पास आइडिया हो सकता है, आइडिया यू कैन शेयर, बट द रियल सक्सेस फॉर दैट आइडिया कम्स बाय एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन इज द की. क्या डेली सुबह उठ के अगले 1000 days कैन यू डू द सेम जॉब विद द सेम एनर्जी, विद द सेम थिंग? दैट्स व्हेन यू गेट टू नो वेदर योर आइडिया इज गुड और बैड. 1000 days थोड़ा ज़्यादा है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि what is that minimum stipulated time where the person starts believing in the idea while the person is executing? Because execution के अंदर भी बहुत effort लगता है. Execution itself teaches you a lot of things, लेकिन I would say that minimum time, because I am 100% sure जब आप कर रहे होंगे, एक होता है ना, मतलब हर एक इंसान के अंदर एक stealth mode होता है कि परेटो प्रिंसिपल आपने सुन रखा है ना कि 80-20 वाला, 20% ऑफ माय एफर्ट गिव मी 80% ऑफ द रिजल्ट्स एंड 80% ऑफ माय एफर्ट्स गिव मी 20% ऑफ द रिजल्ट्स. और नौकरी नहीं होता है. बट जब आपके पास टाइम कम है, आपके पास रिसोर्सेज कम है, तो आप पूरा डाल देते हो. एंड दैट्स वेयर यू हैव द मैक्सिमम पीक लर्निंग, बिकॉज लर्निंग के भी मल्टीपल स्टेजेस होता है. सो अगेन मतलब मैं एक ही चीज पूछना चाहता था आपसे कि इन क्रिएटिंग, व्हाइल यू क्रिएटिंग, डिड यू हैव दैट पीक मोमेंट जहाँ पे आपको सबसे कम टाइम में मैक्सिमम लर्निंग मिली है? एंड वो कितने ड्यूरेशन का था, वो डेज में बताओ हमें. सो इफ आई जस्ट टेल यू एफर्ट, इफ यू आस्क, पहले वाला पार्ट होता है ना जहाँ बहुत एफर्ट डाला है, पुश किया है अपने आप को कुछ करने के लिए, वो 8 to 10 months रहा है.
8 to 10 months where you're pushing, but because I'm from market research का background, 300 दिन लगा मैंने एफर्ट किए, ठीक है ठीक है, बिकॉज मेरे केस में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है मेरे का प्रॉब्लम अलग थी कि भाई कुछ है ही नहीं तो क्या करोगे, तो आपका शॉर्टेस्ट तरीका होता है कि आप सर्वे रन करो, कॉल्स करो. आई पर्सनली हैव कॉल्ड मोर देन 70-80 parents because my first line was a beauty line. Mom, parents, like my seniors, my juniors, my batchmates, anybody कि भाई मेरे ये सोच रही हूँ. So I used to get random. तो मुझे एक आइडिया लग गया था सेंस की शायद यहाँ कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, पता नहीं वो चलेगा नहीं चलेगा, वो मुझे नहीं पता था. नाउ व्हेन इट कम्स टू द फैक्ट कि कितने टाइम में आपको ऐसा लगा कि यार ये मैं सही टाइप्स पे है, कुछ तो भी हो रहा है. सो दिस कम्स फ्रॉम मोमेंटम. सो व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग सेल्स, दैट्स व्हेन योर मोमेंटम कम्स. सो इन अ D2C वेयर जब आपका प्रोडक्ट आ जाता है, वी स्टार्टेड सेलिंग द मोमेंट द प्रोडक्ट लैंडेड. उसके अगले हफ्ते मैंने उसको मतलब इट वॉज अ पॉपअप, मैंने एग्जीबिशन में लगाना शुरू कर दिया था. द नेक्स्ट वीक इटसेल्फ, अब मुझे नहीं पता था बिकेगा नहीं बिकेगा, बट आई वाज लाइक कि आई विल गेट अ पिच ऑन हाउ आई शुड पिच फ्रॉम द मार्केटिंग के साइड. आई गेट अ सेंस कि लोगों का क्या एक्सेप्टेंस है, रियल कंज्यूमर्स क्या सोचते हैं. तो मेरा ये माइंडसेट था. एंड जैसे ही वो सेल्स में कन्वर्जन्स दिखने लग जाते हैं ना, वहां पे आपका मोटिवेशन आने लग जाता है. टिल द टाइम यू डोंट मेक एनी सेल, आपका मोटिवेशन डाउन जाता है. सो फॉर एनी बिजनेसेस, जैसे टेक बेस्ड बिजनेसेस, ये साइकिल थोड़ा लंबा हो सकता है, बट D2C में जब आपके पास प्रोडक्ट हाथ में आ जाता है, यू शुड गो ऑल आउट कि भैया फर्स्ट 100 डेज में मेरा टारगेट है कि 50 लोगों को मुझे सेल करना है. तो हमने ऐसा टारगेट बनाया था. एंड फर्स्ट कस्टमर्स कौन हो सकते हैं? आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. हु इज दैट? योर फ्रेंड्स, your family या known people. And the most difficult is to sell your product, take money from these people only. क्योंकि आप 10 बार किसी को कॉल करेगा, हाँ यार मैं करता हूँ, हाँ यार, मतलब रोज आप बातें कर लोगे, बहाने सुन लोगे, बट शायद वो ऑर्डर नहीं आएगा. तो वी took this as a challenge, लब्धि, मी एंड अदिति, all 3 co-founders, that 50 लोगों को हमें within 40 days कन्वर्ट करना है. तो सबका टारगेट था 50-50-50 कि हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में. Once that sales converted, we got real feedback. कुछ लोगों ने बोला कि चलो दोस्त के लिए ले लिया, किसी ने किसी और के लिए ले लिया. So the most important task यही होता है कि जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाए एट अ D2C, यू शुड फर्स्ट स्टार्ट सेलिंग. उससे थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है, बट जो रियल मोटिवेशन आपका कब बढ़ता है इज व्हेन यू मीट पीपल जो आपसे नोवेयर रिलेटेड है. ठीक है, तो वी यूज्ड टू डू पॉपअप्स, एग्जीबिशंस. वहां पे आई यूज्ड टू मीट mothers, like parents जो मेरे से कोई रिलेटेड नहीं है, बट when they used to buy my product, तो मुझे एक अलग मोटिवेशन फैक्टर आता था. सो ये ना एक साइकिल है, कहने को ये 100 डेज में करना होता है आपको. that you should get your first 50 to 60 orders within the first 100 days of making the product land. So yeah. That's very very insightful. And skincare products and specifically for teenage girls बहुत ज़्यादा सुपर निश है ये, और आपको लगता नहीं है कि ये थोड़ा सा मतलब देयर आर ऑलरेडी सो मेनी प्रोडक्ट्स, द मार्केट इज ओवर क्राउडेड, व्हाई डिड यू गेट इट टू दिस स्पेस? आपको लगता नहीं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिस्क है? रिस्क किस चीज़ में नहीं है? आज की डेट में हर एक चीज़ इज अ रिस्क, लेट्स बी वेरी रियल. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को प्रोडक्ट बनाने से ज़्यादा माई ऑब्जेक्टिव वॉज टू मेक श्योर दैट आई एम लीविंग अ मैसेज फॉर द यंगर जनरेशन. उनको बहुत ज़्यादा स्किन केयर की नीड नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा करेक्शन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है. वॉट दे नीड इज ऑनेस्ट लेबल्स दैट मेक यूज इंग्रेडिएंट्स टू हेल्प देम सॉल्व देयर डेली प्रॉब्लम. अगर इस एंगल से हम सोचते हैं तो येस, माई कैटेगरी यू कैन थिंक कि थोड़ा सा नीश हो सकता है, बट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड विच इज़ 3 to 14. आज एज अ मदर, वॉट एवर न्यूट्रिशन, वॉट एवर पोर्शन आई एम गिविंग टू माई चाइल्ड, वही उसकी बोन्स बना रहा है. सो द फाउंडेशन हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, एंड दैट्स वाई बच्चों के लिए स्किन केयर इट्स नॉट अ कैटेगरी, इट इज एक्चुअली द डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ देयर चाइल्डहुड. ओके, बट डोंट यू थिंक दैट इट इज, जो आपने बताया था कि फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ द बच्चा, स्किन एंड बोन्स एंड अदर थिंग्स जो कि आपके डेवलपमेंट को, वो दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग इनसाइड द बॉडी, दिस इज एक्सटीरियर के अंदर उतना ध्यान जाता नहीं है इंडियन पेरेंट्स का. एंड डोंट यू थिंक दैट it is a very it's too small a problem to solve? It becomes really big and it is not a small problem to solve. आपको क्या लगता है आज इतनी बड़ी इंडिया में BPC, ब्यूटी पर्सनल केयर की इंडस्ट्री, केटरिंग टू एडल्ट, केटरिंग टू प्रॉब्लम्स क्यों खड़ी हुई है?
We have amazing brands like Traya. We have brands like, Bombay Shaving Company. We have brands who are doing really well. And their products are really good. I personally have used many products. But at the same point of time, अगर मुझे वहाँ पे अपने child को करना है कि whatever is happening on her skin after a period of time, क्या मैं वो बचा सकती हूँ? Then मुझे वो foundation में वो I have to make it much more strong. सीमेंट लगा के स्ट्रॉन्ग करना है मेरे को. So that's the objective, that आप अपने बच्चे की स्किन को अभी से केयर करो कि उसको बाद में जो प्रॉब्लम हो रही है, we can't prevent everything, right? बट क्या हम उसको डिले कर सकते हैं? बिकॉज एज अ पर्सन हुज वर्कड इन द फार्मा इंडस्ट्री, हमको बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट? तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज लाइक, कैन वी डिले इट? That's the entire objective. And if we don't do it, so there are two sides to it. If we do it, what happens? We discussed it. If we don't do it, then there is so much harm that these products can do for your child. Adult skincare, because kids are not mini adults. The bottom line is कि वो young adult नहीं है. What do you mean by mini adult? So mini adult, if you define it, तो उसमें it's like you use a diluted products, you use as a downgraded version of what you use for an adult. It could be through clothing, it could be through your skincare, it could be through the food that we eat. Fast food, no doctor recommends, right? Right. They will prefer say कि यार how much ever you are able to avoid, you should. There are reasons to it. There are a lot of reasons to it, and I think you know it. But at the same point of time, think from the perspective कि जो क्रीम मेरी बेटी लगाए और जो क्रीम मैं लगाऊं, क्या वो सेम होनी चाहिए? So you founded Mishmash from something that has happened to your daughter. Yeah. So was that something जो कि मतलब आपकी जो daughter है, उन्होंने, first of all, how old is she? Right now she's going to turn 6. She's going to turn 6. And when did you figured out that her skin, because it came out of a problem which was a personal problem, क्या हुआ था exactly उन्हें? Okay, so very fast forward to what happened. So when she was 2.5 years old, so it was a Janmashtami preschool function. I dressed her up as Radha. I applied my luxury makeup to her, and it reacted on her cheeks, on her lips, and on her eyes. It was all red. Chemical burn हो गया था. When I went to the doctor, she told me it's very normal that you should not use your products on the kid, and you've done a mistake. It will go away. You just let it be and use some soothing creams. It will be fine. And I was very shocked because, in my mind, kids always love color. The only thing that I could do at that situation was to prevent her to use anything, right? That prevent her, stop her creativity, stop her the way that she wanted to express herself. Because kids के लिए makeup कोई vanity नहीं है. It is more to do with how they want to play. One day they want to dress up like, a Cinderella. Second day she wants to mimic like her mother, be a office going girl. And if what I was trying to do is like, stop her. Don't do it, because there is no option, no alternative that I can give. And because of my work, I used to travel outside of India multiple times. So I did my BTech so I'm an engineer by profession. I did my BTech and my MTech in biotechnology. Then I worked in multiple pharma MNC companies for, more than 14 to 15 years. And that's when I decided, when I was at a very senior level position, that I need to do something for all the daughters, and it's worth taking a risk. And I left that word to, make a brand which is solving kids' problem. Do you think that the solution which you have created, people are understanding that this is actually the solution which people should know about and they are using it? Parents are ignorant. Parents are ignorant. Ignorant. Okay. Why are they ignorant? They don't know. So before the first category that Mishmash launched was actually a makeup category for little girls, like 3 to 14, they can use because they were inspired by nature. So we use skincare, K elements, and natural Ayurvedic colors, which is all around you, like jamun, beetroot, strawberry, to give them little tints. So that, kids feel कि अरे हमने makeup लगाया, but actually वो skincare है. And at the same point of time, it is giving them that feel कि today I'm a princess and everything. But at the same point of time, when we were launched this product, okay, and I wasn't sure कि बहुत सारे कितने parents मेरे जैसे होंगे. We used to get eyebrows
in our pop-ups. हमने pop-ups बहुत किए हैं. Pop-ups means exhibitions at the okay. तो काफी सारे parents बोले कि हम समझ रहे हैं आप क्यों कर रहे हो. Because there is nobody who is solving this problem. एक category ऐसी है जिसको कभी किसी ने define नहीं किया है. This is that category. Makeup for kids is not a makeup, but it is a category that everybody needs. So if you have a daughter, yes. right? You have a daughter, right? When you go to wedding functions, maybe your temple functions, or when she has a school, performance, or she has a fancy dress performance, or she's going outside, she will need to dress up a little bit. She wants to glam up a bit, right? But she normally uses her mother's makeup. That's exactly what is wrong, right? Because that particular जो आपने अभी easily बोल दिया, उसके अंदर क्या है ingredients आपको पता है नहीं? मैं एक्चुअली ना मेरे को मैं थोड़ा प्रोसेस इसलिए भी करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि सो व्हाट इज द बिग डील. मेरे दिमाग में यही चल रहा है अभी एज ऑफ नाउ. यही दैट्स व्हाई आई सेड कि पेरेंट्स आर इग्नोरेंट. अभी आपको लग रहा है कि यार मे बी साल में 6-7 बार वो मेरा भी यूज कर रही है तो क्या है, बट आपको ये नहीं पता कि लॉन्ग टर्म हार्म क्या है उसका. क्या है मतलब प्लीज लेट्स गेट टू द साइंस टू इट. मतलब क्या है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली हाउ इज अ स्किन आई वुड से टाइप डिफरेंट फॉर अ चाइल्ड हु इज ऑन द 3 years 4 years जो आपका हुआ है टू a person like me or maybe adults like us. बायोकेमिकली एंड फिजियोलॉजिकली बच्चों की स्किन और एडल्ट की स्किन में बहुत डिफरेंस होता है. आपने सुना होगा कि हमारी स्किन पे 7 लेयर्स होती हैं. वेरी कॉमन misconception. 7 layers. Okay. 7 layers. What are those layers if you can define? Epidermis. First is epidermis. ठीक है. Second is dermis. Second is dermis. डर्मिस इसके अंदर होती है. ठीक है. इसके नीचे. देन इसके बाद और भी हाइपोडर्मिस होती है. उसके अंदर के जो सेगमेंट है ना, इसी के अंदर आती है मल्टीपल लेयर्स होती हैं. ठीक है. ठीक है. इसी के अंदर जो आपकी जो 7 लेयर्स बोलते हैं ये वो आती हैं. अच्छा. बाकी इसके अलावा हेयर फॉलिकल स्वेट ये अलग होता है. ये जो आपको राइट साइड में जो 3 दिख रहे हैं ना, यही है मेन. हाँ, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, जिसके अंदर मल्टीपल आती है. अच्छा, इसके अंदर फर्दर इसके सब कैटेगराइजेशंस होता है. हाँ. अच्छा, तो व्हाट एग्जैक्टली डज द स्किन डू जो बता रहे थे ना आपकी ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट विल इम्पैक्ट, तो इसमें से किस वाले लेयर को इम्पैक्ट करता है ज्यादा? तो तीनों को करता है. तीनों को. तो जैसे एक बच्चा होता है, न्यूबॉर्न होता है एंड एवरीथिंग, तो स्किन की लेयर बहुत पतली होती है, कि बहुत सारी वेरी सेंसिटिव. वो क्यों होती है? क्योंकि उनकी डर्मिस, एपिडर्मिस और ये हाइपोडर्मिस ये डेवलप हो रही होती है. तो टिल द एज, फ्रॉम द एज ऑफ 3 टिल द एज ऑफ आफ्टर योर प्यूबर्टी, समवेयर बिटवीन 14 to 15, ये टाइम होता है जब आपकी लेयर्स फॉर्म हो रही होती है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग की लेयर होती है, डर्मिस इतनी मोटी होती है, बच्चों की इतनी होती है, और उसके नीचे की लेयर फिर आपकी डर्मिस आ गई. तो ये आप तो बच्चों की जो स्किन है ना, वो 30 times थिनर होती है. दैट्स वाई जो प्रोडक्ट आप डर्मिस पे लगा रहे हो, वो मतलब जो प्रोडक्ट आप स्किन पे लगा रहे हो बच्चों के, उसके चांसेस इतने हैं कि वो अंदर एब्जॉर्ब होके ब्लड वेसल्स तक आएगा. इसीलिए बच्चों में आपने देखा होगा इरिटेशन, रेडनेस बहुत जल्दी हो जाती है वर्सेस एडल्ट्स. सो इसके जो एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ये क्रीम्स लगाने के हैं, ये सीधे ब्लड वेसल्स के अंदर जाके इट कैन कॉज स्किन इरिटेबिलिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी. सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा और कुछ? आप सोचो एडल्ट के प्रोडक्ट्स में क्या होता है? phthalates, sulfates, as well as different hormone agents होते हैं. तो जो भी adult skin care और adult जो personal care की कैटेगरी होती है, specifically makeup, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं. लिपस्टिक के अंदर हेवी मेटल्स होते हैं दैट गिव्स यू द कलर व्हिच इज वेरी बैड, हार्मफुल. सो देयर आर मल्टीपल. आर देयर एनी कार्सिनोजेनिक एजेंट्स? यस देयर आर. मतलब आपने अच्छा, ये हार्मोन से एक्स्ट्रा डालते हैं जिसकी वजह से बॉडी एज होती है? बिकॉज मैंने आजकल देख रखा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनसे अब उनकी एज पूछ लो, वो तो कहेंगे कि मैं 16 years के, 20-25 साल के लगता है. वी हैव लाइक केसेस जहाँ पे लड़कियों की प्यूबर्टी 8, 7, 10 years में. मतलब एट माई टाइम व्हेन लाइक वेरी लॉन्ग टाइम, तब हमारी एवरेज एज होती थी मे बी 12 to 14 years के बीच में. अभी वो एज बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, और उसका रीजन है बिकॉज वी आर एक्सपोज टू दीज एजेंट्स. तो जब आपके पर्सनल केयर जो आप डेली नहा रहे हो, व्हाटएवर मेकअप इफ योर डॉटर इज यूजिंग और शी इज डूइंग इट बिहाइंड योर बैक, विच इज द वर्स्ट. ओके, तो उन प्रोडक्ट्स के अंदर वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो डायरेक्टली हैव द पोटेंशियल टू इम्पैक्ट द हार्मोन सिस्टम. So what it means is that उन हार्मोन्स की वजह से आपकी puberty can happen. Your child can hit puberty early.
That's one. happening a lot. खाने में Is it because of just skincare और बाकी और भी बहुत सारे it's all environment It's as all well. environment. Pollution plays a role. The kind of mineral oil you eat, जो भी आप fast food बाहर खाते हो, PFAS करके एक agent है. It is very highly not at all a good agent to use, but वो होता है. Like so, it's not only one system that impact. It's a ecosystem. Right. मेरा objective simple है as a mishmash brand. If we can make clean products that नरिश, बच्चों को पोषण चाहिए. 16 इयर्स तक आप सोचो, इतनी सी स्किन है अभी, डर्मिस अभी इतनी है, इतनी उसको होना है, उसके अंदर बढ़िया एलिमेंट्स होने चाहिए ना, न्यूट्रिशन. तो वो न्यूट्रिशन क्या हम फिक्स कर सकते हैं कि दैट बाय द टाइम दे ग्रो अप, तो वो जो पोषण चाहिए उनको एंड वॉट एवर संतुलन दैट द किड्स चाइल्ड स्किन नीड्स, वो अच्छे से उनको मिल रहा है. दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव. That's a very good objective. मैं हूँ साउथ इंडिया के साइड से हूँ एंड मैं इतना देखा है कि माई सिस्टर आई थिंक she'll turn maybe 50, ठीक है ना, एंड अभी भी मैं उसका स्किन टोन देखता हूँ, वो पता नहीं यंग ही लगती है मेरे को स्टिल. और मैंने उसका बचपन देखा है, बचपन में मिशमैश नहीं था एंड जो होते थे वो टिपिकली आपके हमाम, लिरिल, नाइल, सनसिल्क और हेड एंड शोल्डर्स तो बहुत बाद में आया था. ये वाले ब्रांड्स होते थे और कुछ तो लोग अंडा उठा के सर पे डालते थे एंड टिपिकली एक ही साबुन पूरी फैमिली यूज कर रही होती थी. व्हाट हैज एक्चुअली चेंज्ड बिकॉज ऑफ व्हिच दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस इज राइट नाउ नीडेड टू द न्यू एजिंग पेरेंट्स. बहुत सारी चीजें जो डिफरेंट थी जब हम लोग बड़े हो रहे थे और जब हैं जिस एज में हम लोग हैं. यस, तब सेम टाइप का सोप यूज होता था. हमाम हो सकता है, नहीं तो मैसूर सैंडलवुड सोप होता था. इसके अलावा आंवला शिकाकाई का साबुन बनाते थे. तो मैं आपको अपना बता सकती हूँ, उस टाइम पे प्रोडक्ट्स बहुत अलग होते थे. पानी प्योर होता था, खाना प्योर होता था, आपका एनवायरनमेंट में भी इतने ज़्यादा पोल्यूटेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं थे. आपको इतना स्ट्रेस भी नहीं होता था, कोई इतना परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं था. आप स्कूल के ही ले लो, इट्स लाइक ओवरऑल इकोसिस्टम वाज वेरी डिफरेंट. ठीक है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि हमारे माँ बाप ने भी ये गलती की थी. देखो, मेरे पेरेंट्स वर वेरी डिफरेंट, क्योंकि आई वॉज बोर्न इन लकी टू बी बोर्न इन आयुर्वेदिक. डॉक्टर्स है मेरे दोनों पेरेंट्स. जब मैं छोटी थी, मेरे फादर की एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था. मैंने घर पे चमनप्राश, आंवला शिकाकाई बनाते हुए, मेहंदी, फेस पैक्स, शैम्पू, बॉडी लोशन मेरे तो घर पे बनते हुए देखा है. तेल, जड़ी बूटी तेल मम्मी बनाती थी किचन में, हम तो वही लगाते थे. Why are adult products risky for the children? एडल्ट प्रोडक्ट्स के अंदर ना बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बच्चों की स्किन को नरिश नहीं करते. लाइक फॉर एग्जाम्पल पिथैलेट, सल्फेट्स, और कुछ इंग्रेडिएंट्स के नाम बता देती हूँ: मिनॉक्सिडिल, रेटिनोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड. सो एडल्ट के प्रोडक्ट किस लिए होते हैं? वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं. इट कुड बी पिगमेंटेशन, इट कुड बी हेयर डैमेज, इट कुड बी रेडनेस इन योर स्किन. मतलब एडल्ट के प्रोडक्ट्स आर मेड so that problem is getting solved. Your kid does not have any problem. उसकी स्किन को बस नरिशमेंट चाहिए. अब वो नरिशमेंट अगर आप ढंग से नहीं दे रहे हो एंड यू आर एक्सपोजिंग देम टू ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स, सैलिसिलिक एसिड, रेटिनोइक एसिड, मिनॉक्सिडिल, आपके प्रोडक्ट में कुछ भी हो सकता है, राइट? जो इंग्रेडिएंट्स तो जैसे मिनॉक्सिडिल, इट्स लाइक अ मैजिक इंग्रेडिएंट जो आपको हेयर ग्रोथ में मदद करता है. ट्राया इज अ कंपनी दैट हैज यूजिंग लॉट ऑफ, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो यूज करती हैं इन इंग्रेडिएंट्स. और ये टिपिकली आपका जो ग्रोथ साइकिल ऑफ अ बच्चा है उसको डिसरप्ट करता है, बिकॉज ये ऑलरेडी बच्चों के पास ऑलरेडी एज वाइज ग्रो हो ही रहा है एंड इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. एग्जैक्टली. हैज द नेचुरली. एग्जैक्टली. तो जस्ट इमेजिन, पिगमेंटेशन हो रही है आपके बच्चे की, हो सकता है जैसे उसकी डर्मिस और एपिडर्मिस ढंग से फॉर्म हो जाएगी 16 की एज तक, देन दैट प्रॉब्लम विल नॉट हैपन. बट नाउ आपने क्या किया? आपने उनको क्रीम दे दी दैट हैज गॉट एलिमेंट्स, मे बी वो पिगमेंटेशन कम कर रहा है. यू आर डूइंग टू डैमेज. नंबर 1, एक तो आपने वो इंग्रेडिएंट्स बनने ही नहीं दिए बॉडी में, ठीक है. सेकंड, योर चाइल्ड स्किन, इट इज गेटिंग यूज टू एक्सटर्नल एविडेंस और एक्सटर्नल इंग्रेडिएंट, उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स या उस पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन का जो डिफरेंस है उसको कवर अप करने के लिए. तो व्हाट इट मीन्स कि बच्चों को आदत पड़ रही है, बच्चों की स्किन को, कि ये इंग्रेडिएंट तो हमारी बॉडी बनाएगी नहीं, हमें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड हो गए. सेकंड, बिकॉज आपने एक्सटर्नल पे डाल दिया तो बॉडी ने प्रोड्यूस ही नहीं किया. इसे कहते हैं इरिवर्सिबल डैमेज
बट ये इरिवर्सिबल इन टोटल इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. आपको एकदम से नहीं दिखेगा कि एकदम से आज आपने लगाया कल ऐसे डैमेज हो गया. इट्स अ प्रोसेस. इट विल टेक लाइफ लॉन्ग टाइम लगेगा, बढ़िया साल लगेंगे, पर जब आपको वो डैमेज दिखा फिर उसके बाद देयर इज नो गोइंग बैक. देन डरमैट्स, मेडिकेटेड प्रोडक्ट. सारे के सारे मैंने अभी भी पॉडकास्ट देखे, वो मोस्टली एक डैमेज ऑलरेडी हो रहा है, डैमेज उसी डैमेज को कैसे ठीक कर सकते हैं उसके ऊपर काम. व्हिच मींस जो आप अभी जो प्रमाइस सेट कर रहे हैं कि अभी नहीं पता चलेगा और पीरियड टाइम पता चलेगा, बिकॉज जितने भी इंटरव्यूज मैंने देखे हैं उसके अंदर ज्यादातर डर्मैट्स स्किन के रूटीन के बारे में बताते हैं कि तुम्हारा स्किन के अंदर ये डैमेज है, इसको ये करना है. मे बी बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच were used in the past as children by those individuals had those harmful chemicals जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसकी वजह से उन्हें ये नया वाला जो डर्मेटोलॉजी का जो साइंस है उनको करना पड़ रहा है, and they have to use those different kind of things. Exactly. पूरी BPC industry is a problem and they are solving it. So more or less ये वैसा ही हो गया ना कि creating tobacco is the person who is manufacturing cancer hospitals. Yeah. So it's a very It's a cycle. It's a vicious cycle. It's a vicious cycle, yeah. Acha, and it is good for the companies also, because they know that if the kids are using their products अभी early in life, आने वाले टाइम में उनका मार्केट और बढ़ाएगा, because फ्यूचर में भी वही वाले प्रोडक्ट्स यूज होंगे. उसको थोड़ा सा और अलग तरीके से पैकेज वगैरह करके बता देंगे. यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ समबडी हु कम्स फ्रॉम द आयुर्वेदा बैकग्राउंड. सो फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूँ, मेरे को अपने बच्चे के लिए क्रीम चाहिए, ठीक है ना. आपका जो टीम बैठा होगा वो क्या दिमाग में लेके बैठा है कि एक एक क्रीम में क्या क्या जाएगा, हाउ डू यू फाइनलाइज द फॉर्मुलेशन Got it. कि यही बच्चा का नरिशमेंट के लिए, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट द नरिशमेंट हियर. सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? Yeah. So basically, mishmash में हमारे लिए and new product development comes. We don't randomly prepare products. We identify the problem. Then we define कि इस product को solve कैसे करने हैं. Then we define a formula. We work with that formula to create certain samples. Stable करते हैं. Then when we see it solving a problem, we launch it. So just to let you know, so मेरे parents दोनों आयुर्वेदिक doctors हैं and they are also part of the Ayurveda consultants that we have at Mishmash Natural. Dr. S.P. Singh, Dr. Ira Singh, and there is also a third Dr. Umesh Agarwal, जिनके साथ हम लोग काम करते हैं. So what we do basically is, so from the product perspective, we define कि these are the problems. Right. So let's say we are doing a body lotion, so we'll define कि body lotion का basic काम क्या होता है. So hydration, moisturization होता है. इसके अलावा भी काम होता है आपके, अगर, और ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है. अगर मैं बच्चों के सेगमेंट में देखूँ तो कॉमन क्या होता है, वो गिर जाते हैं, उनके चोट लग जाती है, कट्स, बर्न्स होते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डीप चोटें जो लगती है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वुंड्स, बट जो जाने वाली होती है, उनके दाग रह जाते हैं कहीं पे, कहीं पे नाखून मार लिया तो दैट लाइक उसका बर्न है एंड एवरीथिंग. तो व्हेन वी क्राफ्ट दोज प्रोडक्ट्स, तो पहला होता है एक बहुत लंबी एक लिस्ट बनाई जाती है रिसर्च के थ्रू कि दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट किड्स फेस अपार्ट फ्रॉम, चलो मेरे प्रोडक्ट को हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन, ये मेरा बेसिक नीड है जो एक बॉडी लोशन को करना है. उसकी जो डीप नीड है कि वो बच्चों को क्लाइमेटिक में सूट करना चाहिए, उनके कट्स, उनके बर्न्स, उनको सही रखना चाहिए, उनके स्किन के जो माइक्रो एनवायरनमेंट है लाइक पीएच एंड एवरीथिंग, उनको सही रखना चाहिए. तो ये सारी एक लॉन्ग लिस्ट में जाती है. देन वी वर्क विद द आयुर्वेदिक कंसल्टेंट. वी हैव लाइक स्पेसिफिक बुक्स जो वो कंसल्ट करते हैं, उसके बेसिस पे वी आइडेंटिफाई दैट दीज आर द इंग्रेडिएंट्स वी कैन यूज. नाउ बाय द वे, सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स बच्चों में नहीं दे सकते हो आप, एंड कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो एक ओनली स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन तक दे सकते हैं, उसके ऊपर यू कांट डू इट बिकॉज किड्स की स्किन अभी भी डेवलप हो रही होती है, हमने बात की थी, एंड they are very sensitive to external ingredients as well. So we have to do that, we have to work really well with those people कि what is the primary job of a body lotion. चलो shea butter, cocoa butter ने ये काम कर दिया. Now comes to the next कि बच्चों को अच्छा लगना चाहिए. क्या मैं इसमें एलोवेरा डाल दूं, जो एलोवेरा इज अ वेरी गुड एजेंट एंड दैट कैन एक्ट रादर देन एडिंग डीएम विच इज वाटर टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि और मॉइस्चर लॉक हो रहा है बट स्टिकी फील नहीं हो रहा. अगेन सेकंड, क्या मैं इसमें वो मेथी का अर्क डाल सकती हूँ, क्या मैं इसमें आलमंड ऑयल, अमेजिंग इंग्रेडिएंट फॉर लॉकिंग द मॉइस्चर, क्या मैं ये डाल सकती हूँ. सो वी मेक अ वेरी लॉन्ग लिस्ट विद इंक्लूड्स बोटानिकल्स. सो दीज आर नोन एज बोटानिकल एक्टिव्स. वी डोंट यूज एक्टिव्स बिकॉज एक्टिव्स भी वहीं से डिराइव हुए हैं, बट यू यूज प्योर एक्सट्रैक्ट्स एज वेल. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बॉडी लोशन है उसका बेस बना है शिया बटर, कोकोआ बटर एंड एलोवेरा जेल में, और उसमें हमने सैफरन डाला है, उसमें हमने आलमंड ऑयल डाला है 7 to 8% के
परसेंट के उसमें एवरी बॉटल हैज दैट. सो द आइडिया वाज कि यार बच्चों के चोट लगे, आप लगाओगे और बर्न्स होए, तो ये थोड़ा उसको दैट गैप को आइडेंटिफाई करना चाहिए. ऑब्वियसली उसका जो बेसिक जॉब है विच इज हाइड्रेशन, नरिशमेंट, वो तो करना ही चाहिए. तो इस तरीके से वी वर्क वेरी एक्सटेंसिवली विद दोज फॉर्मुलेटर्स. कई बार ऐसा होता है कि हम जो पेपर पे बनाते हैं वो चीज लैब में जाता है जब फॉर्मुलेटर के पास, तो फेल हो जाता है. तो वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड कि यार लेट्स फिगर आउट कि दिस इज अ वेरी फ्लूइड कंसिस्टेंसी, चेंज इट, क्योंकि एकदम पतली हुए पानी तो नहीं लगाएंगे. तो हैव टू आइडेंटिफाई कि यार व्हाट कुड बी द राइट कॉम्बिनेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो ये एक मल्टीपल आइटरेटिव प्रोसेस है which takes about 6 to 8 months. And once like we are confident and we do the testing कि यार the product में कोई heavy metal नहीं है, कोई microbial growth नहीं है, pH इसका सही है, then at the same point of time ये skin को nourish ही कर रहा है. So ये जब हमने test कर लिया, then we are confident कि ये product बढ़िया बना है. अब इसको हम लोग रियल मार्केट में जाके वी डू अ कंज्यूमर स्टडी. हमारे पास एक कम्युनिटी का ग्रुप है, वी व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप है. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. सो दोज मॉम्स हेल्प अस लाइक कि टू फॉर्मुलेट. मतलब हमने उन्हें प्रोडक्ट भेजे, दे विल टेल अस कि यार ये स्टिकी लग रहा था थोड़ा सा, ये चीज़ थोड़ी सी ऐसी थी, ये सही है क्या. फ्रेग्रेंस टेस्ट, बिकॉज बच्चों के केस में फ्रेग्रेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी एज अ कंपनी डोंट यूज एनी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस. वी मेक श्योर दैट वी आर यूजिंग ईदर इफ्रा सर्टिफाइड और एसेंशियल ऑयल बेस्ड. अगेन एसेंशियल ऑयल जो कैटेगरी है वो बहुत ट्रिगरिंग होता है बच्चों के लिए, तो वी हैव टू प्ले विथ फ्लेवर्स. तो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं और एक होता है एसेंशियल ऑयल फ्लेवर्स, रोज, हिबिस्कस, चॉकलेट. तो इनके ना सबके फ्लेवर्स आते हैं. सो वी प्ले विद दोज टू मेक श्योर कि बच्चों को फ्रेग्रेंस से बहुत हल्का सा भीनी भीनी खुशबू आए when they are applying it, and at the same point of time it is solving the problem. It's a long process, it takes 6 to 8 months. Now coming to the seasonality part. तो seasonality के part पे गर्मी is very extremes in cities like Delhi, Mumbai, and then we also have like a lot of like cold की Jammu and Kashmir और हिमाचल, यहाँ extreme ठंड पड़ती है. तो हम क्या करते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग हमारा बेस फॉर्मूला सेम रहता है. सीजन के अकॉर्डिंग वी डू प्ले विद द बोटानिकल्स एंड द अमाउंट ऑफ बेस इंग्रेडिएंट. इट डजंट चेंज आवर फॉर्मूला. व्हाट इट डज इज, मे बी जब आपकी गर्मी है तो शिया बटर को मैंने बहुत ज़्यादा मिक्स करके बनाया तो वो थोड़ा सा क्रीमी कंसिस्टेंसी है. बट नाउ इट इज़ अ समर, तो मेरे बेस में मैंने उसमें ना एलोवेरा जेल का थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ाया है, तो वो थोड़ी सी फ्लूइड कंसिस्टेंसी है बिकॉज यू नीड मोर कूलिंग इफेक्ट. सो दैट्स हाउ वी डोंट चेंज आवर फॉर्मूला, वी जस्ट प्ले विद द बेस दैट वी हैव. Coming to my next question, what is the shelf life of your products typically? Because number one, it's Ayurvedic, and number two, the other skincare products manufactured by other famous brands have a shelf life of I think 2 years. So what is the shelf life of your brand? तो शेल्फ लाइफ का गेम बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेशन पे डिपेंड करता है. वी डोंट यूज आर्टिफिशियल प्रिजर्वेशन एंड सिस्टम एंड एवरीथिंग. तो हमारी जो शेल्फ लाइफ होती है वो समवेयर बिटवीन 6 months के आसपास रहती है आफ्टर यू ओपन द प्रोडक्ट. टिल द टाइम यू डोंट ओपन द प्रोडक्ट 2 साल उसकी एक्सपायरी डेट है. So expiry date is different than the shelf life. Is it mentioned in your product? Yes, very clearly. We were very particular कि हमारा लेवल 100% clean है. तो we make sure कि तो आइडली कंपनीज क्या करती हैं, ये भी एक स्ट्रेटेजी है. सो दे हैव दिस डस्टबिन का एक सिग्नल होता है, उसके ऊपर 3 लिखा होता है, बहुत छोटा सा होता है बिकॉज इट इज़ मैंडेटेड. बट किसी को नहीं पता वो क्या होता है. वो एक्चुअली शेल्फ लाइफ होता है. इट मीन्स आफ्टर यू ओपन द प्रोडक्ट यू शुड यूज करना है. यस. और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है और जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो 2 या 3 साल हो सकती है. दिस इज अ मैंडेटेड बाय गवर्नमेंट. लॉट ऑफ पीपल डोंट नो. बट हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज हमको लगता है कि यार नॉट एवरीबडी इज that much aware. तभी फूड फार्मर लेबल पढ़ो, इंडिया पढ़ रहा है बिकॉज nobody wants to read the labels. You rightly pointed. ठीक है, ये मेरे को बहुत फर्स्ट टाइम पता चला कि अच्छा ऐसा भी होता है. That's interesting. So what we do in our label is वो तो लगाना है मैंडेट, बट हम उसमें लिख भी देते हैं every product है use within 6 months of opening the product. POA बोलते हैं इसको, period of expiry होता है. I see. Okay. What are parents most wrong about? So for example, makeups वाला जो है, so there are 2 types of parents. Number one is extremely against makeups, कि makeups नहीं करना, and the other lot you can see on the social media, वो अपने बच्चों के साथ ही makeup वगैरह कर रहे होते हैं. So entire concept of makeup is only emergent in the women. ये मैं stereotype नहीं कर रहा हूँ, men के अंदर भी होता है, लेकिन dominant
forces the women only. If somebody is giving something to the child, how it can impact, and give a very practical suggestion. So maybe number one, first step तो यही है that as a parent, my primary responsibility is not as a founder, but also as a parent, because I represent a category which never existed, but which is very important if we have to safeguard the childhood. So my primary objective is to make sure that my child is grown in a circumstances where she knows what is good, what is bad, and is aware of it to make that judgment. That is what it is as a parent. So from a company standpoint, that was very important for us to initially start as well. जो आपने बोला ना कि मेकअप के दो कॉइन्स हैं, इधर पेरेंट्स आर ओके विद इट और दे आर अगेंस्ट इट. अगेन ये हमेशा है. Even for me, we have people who are absolutely against it. Then we have people who are okay to it. But I feel as a parent, we have to be somewhere down the line. एक आपको you have to understand that you can't put your child in a bubble. आप उसे social media से, आप उसे अपने फ्रेंड से, पीयर प्रेशर से, जो भी कल्चर है, जो भी कंपटीशन कल्चर, पीयर प्रेशर है, आपका स्कूल का अलग कल्चर है, कोचिंग का अलग कल्चर है, अलग अलग आप एक्सटर्नल जिम्नास्टिक कंपटीशन में जा रहे हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स, यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग. But I can give my child the best values. Best values is to make the child more educated. So that's what the objective primary is of my company, to make sure that we make products that nourishes your child's growing skin. They should be aware what is the harm and what harm it can do, so that the child can learn from you as a parent कि यार देखो पहले ये कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती थी, अभी ये इसलिए कर रही है. तो yes, लॉट ऑफ आई बॉल्स मिलती हैं कि मेकअप मेरे बच्चे को क्यों चाहिए, अभी नहीं चाहिए. कैन यू कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट? Can we make this as part of a dinner table conversation that these products have this harm, so you can't use it? If you tell a child, आपकी बेटी को बोलोगे कि यार बेटा ये नहीं करना है, वो आपके पीछे से क्या करिए, डू यू नो इट? वही करेगा जो मैंने मना करे. Exactly. तो you can't just generalize it. ना बोल के काम खत्म नहीं होता और सिर्फ समझा के भी काम खत्म नहीं होता. You need to consciously have ingredients, use products. You need to consciously give them the tools to be equipped. If somebody wants to do, yes, this is something that is age appropriate. This you have to use till this time because पैथोफिजियोलॉजिकली एंड बायोकेमिकली आपकी स्किन डिफरेंट है. तो दैट चाइल्ड के माइंड में एजुकेशन आती है, वो फिर लेबल पढ़ना चालू करते हैं. एंड इट इज सेम ट्रू विद व्हाटएवर यू आर मेकिंग योर चाइल्ड ईट. पहले तो हम लोगों को टप्पी मार के चुप बिठा देते हैं. यहाँ पर जो है more or less control आपके हाथ से निकल चुका है, because every child has a smartphone and they have their own user ID and password, okay, and they have their own secrets. You don't have much of control there. ठीक है, ये यहाँ पे पेरेंटिंग वाला तो गेम है नहीं, यहाँ पे पेरेंटिंग इन्फ्लुएंसर कर रहा है इस टाइप पे. यहाँ पे आपका इन्फ्लुएंस ही पेरेंट नहीं है, गायब हो चुका है, राइट? So what do you think that it will be a challenge for you as a brand, because you're educating the person who knows but who really cannot influence their own child, because their influencing factor is somebody who is international, और वो पेरेंट्स को बताएंगे आपको कुछ नहीं पता, मेरे को ज्यादा पता है. तो आपको लगता नहीं है कि you have created a category, you are working so hard, but that has not gotten enough of I would say visibility which it should be needed? Yeah. And how do you plan to educate those people? तो फर्स्ट स्टेप तो इसका ये है कि जैसे आप और मैं पेरेंट्स हैं, इंडिया के बाहर भी ऐसे पेरेंट्स हैं. वी बिलोंग टू दैट कैटेगरी. सो एट अ ह्यूमन लेवल वी आर ऑल गोइंग थ्रू द सेम जर्नी irrespective of whatever country that we live in. Sephora kids, नायका में यंग गर्ल्स, टीन गर्ल्स का जाना, बच्चों का इम्पैक्टफुल होना कि देखना भाई हर जगह पे नेल पेंट्स और मेकअप बिक रहा है, हमारे ज़माने में नहीं था. ये एक ट्रू है, इट्स वेरी ट्रू कि यार बच्चों को चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं. तो ये बी इट इंडिया, बी इट आउटसाइड इंडिया, ये एक जनरल प्रॉब्लम है. फॉर अस, लाइक एवरीथिंग, स्टार्ट फ्रॉम होम. So the first step for us was to start with educating India, number one. And when I say India, I do include Bharat as well, which is like mostly tier 2 and tier 3. Because मेरे को ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाना है, एस्पिरेशनल प्रोडक्ट जो सिर्फ इंडिया में रहे. मेरा ड्रीम है टू एवरी चाइल्ड, जो भी आपका बच्चा है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 14, उनके बाथरूम में मिशमैच का प्रोडक्ट होना चाहिए. बीट बाथरूम, बीट देयर मेकअप वैनिटी सेट. बिकॉज हमें पता है कि
इंडिया का ट्रेडिशन था आयुर्वेदा। आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आपकी डॉटर को या आपके आसपास कितने बच्चों को पता होगा कि आयुर्वेदा क्या करता है? The irony is that Ayurveda is from India, but sadly Ayurveda products are not very well known. उसके रीजंस मल्टीपल हो सकते हैं बिकॉज हम सबको एज फास्ट रिजल्ट्स एज पॉसिबल चाहिए एंड मे बी आयुर्वेदा टेक्स टाइम, इट्स अ स्लो वन थिंग बट इट गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। वो एक चीज है मेरे ख्याल से जो हम सब में है नहीं। एग्जैक्टली तो जो आपने बोला ना, तो देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं था कि सॉल्व करे प्रॉब्लम, सॉल्व ट्रेडिशन से करे। अगर इंडिया का योगा बाहर जा सकता है एंड आयुर्वेदा बाहर इतना ज्यादा पॉपुलर है, तो क्या हम आयुर्वेदिक रूट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो ग्रोइंग स्किन की प्रॉब्लम्स को केटर करे एंड बच्चों को एक एक पोषण पूर्ण स्किन देने में मदद करे। सो ये हमारा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव रहा है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एज अ कंपनी हम बहुत एजुकेशन पे बहुत फोकस करते हैं। हमारा सारा सोशल मीडिया इज फिल्ड विद एजुकेशनल कंटेंट वेयर मॉम्स and dads upfront आके they share their thoughts through reels so that we can make sure कि ये एक acceptable part बने। How far we have come? Yes, we have a long journey, but again एक शुरुआत है कि एक tradition को थोड़ा सा jazz up, modern करे। इंडियंस के एफर्ट्स की इज्जत नहीं है। एज अ फाउंडर क्या है, कैसा भी हो, कहना तू फाउंडर है, तेरे जैसा 36 मैं कल फाउंडर। एंड ये वो लोग बोलते हैं जो कुछ नहीं करते हैं, वो आपको आके डिमीन करते हैं। whereas when I'm talking about countries like and United States, of course it's the world's biggest capitalist hub, वहाँ पर लोग सेलिब्रेट करते हैं failures, founders के efforts, anything which is innovative, anything which is adding value to the human potential, they are celebrating those things. And unfortunately we do not see those successes because again failure के टाइम पे वो पीठ थपथपाता है कि तू फेल हो गया, तूने जर्नी के अंदर तूने कुछ ना कुछ तो ग्रो करा है। because people who fail they have grown exponentially in that particular phase. But whereas in your case, you have created a product, you have identified a product market fit, you tested the market, there is market and people are buying. You are right now, having a sales of approximately 50 lakh plus a month. You are exploring different markets. In fact, आप ये भी बता रहे थे कि आपकी काफी सारी सेल मेन मेट्रो से नहीं आ रही है, tier 2 and tier 3 से आ रही है। कैसे पॉसिबल है ये? एस्पिरेशनल। सो हमको भी स्टार्टिंग में लगता था कि यार शायद इसकी डिमांड टियर 1 में ही होगी। तो बट इफ आई टेक माई एंटायर सेल्स एंड स्प्लिटेड 50% येस इट कम्स फ्रॉम माई टियर 1 सिटीज़, बट जो 50% है वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में आती है। आई हैव सर्व्ड आसाम में एक छोटे से टाउन से लेके कन्याकुमारी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट कन्याकुमारी के एक छोटे से कस्बे तक, बिकॉज एस्पिरेशनल वैल्यू है। एंड बिकॉज राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इज वेरी पावरफुल। सब जगह पे बच्चे लोग गेट रेडी विद मी, मल्टीपल रेजीम वाले टोन एंड एवरीथिंग, एंड पेरेंट्स आर टू अ वेरी लार्जर एक्सटेंट एजुकेटेड, दे वांट व्हाटएवर इज बेस्ट। तो जहाँ भी कोई भी पेरेंट चाहता है अपने बच्चे के लिए टू मेक देम अवेयर, टू मेक श्योर कि वो प्रोडक्ट्स यूज करें जो उनकी एज अप्रोप्रिएट है, तो वी डू गेट ऑर्डर्स। एंड लाइक 50% ऑफ माई सेल्स कमिंग फ्रॉम टियर 2 टियर 3 इज द एविडेंस कि ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इंडिया का ये कल्चर है, इट इज भारत एज वेल। Why do teenagers want skincare so early? So basically teenagers don't want skincare so early. So makeup makes you feel, skincare or makeup makes you feel different. Isn't related to their self-esteem? Somewhat yes, somewhat self-esteem, somewhat confidence, but it's also a larger portion is also to the environment than the ecosystem that they are exposed to. If one person in their group is dressing up really well and grooming herself very well, then the child automatically wants to this is my aspiration, I want to do what she's doing. So it's a normal aspiration. This is like human nature. Monkey see, monkey do. Simple. हम जो देखते हैं और जो हमारा बच्चा देखता है उसे वही करना। Why do the kids want to look? तो ये तो behavioral psychology types का part हो जाता है कि I want to, so like if you see lot of kids, उनके हमेशा जो दोस्त होते हैं ना, they always want to have older friends. They prefer not to make younger friends. So this is something that I discussed with few friends who are doing behavioral psychology on kids, but they also told me that yes, this is a trend that lot of countries are studying upon कि ये थोड़ा different है। If they are watching, because मेरे को मालूम है कि हम उनके Facebook पे तो है नहीं, if they are at all watching, what is the mistake which they are doing? The teenage, or you can say the kids who are
younger to the teenagers, let's say teenage से भी थोड़ा कम है, वो क्या गलती कर रहे हैं when they're doing the makeup? Because आप नहीं रोक सकते, they will do. नहीं, आई थिंक सबसे बड़ी गलती व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर यूजिंग प्रोडक्ट्स जो उनके लिए बने ही नहीं है. लेट्स टेक अ वेरी बेसिक एग्जांपल, नाइका. लाइक यू टेक योर डॉटर्स और चाइल्ड चिल्ड्रन टू मॉल्स, सेफोरा, नाइका, इन सब जगह पे वो जाके रुक जाते हैं. दे वांट टू ट्राई, एंड गलती कंपनीज की भी है दैट दे लेट टीन्स try products which are not meant for them. Second is also the publicity angle of it, the marketing angle, where things are marketed as gentle, safe and natural. तो मदर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में आता है, अच्छा मेरे लिए है जेंटल, सेफ, नेचुरल, मेरे बच्चे के लिए भी होगा. ऐसा नहीं है. मिसइंफॉर्मेशन है, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसइंफॉर्मेशन, मिस मार्केटिंग, रॉन्ग टारगेट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो बहुत सारे ब्रांड जो आपने देखे होंगे वो बच्चों के लिए नहीं बने हैं. बिकॉज क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, दे हैव अ फॉर्मुलेशन विच इज हाईली इनटू बोटानिकल्स, हाईली एक्टिव वेज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. वो उसका आपने एक डाउनग्रेडेड वर्जन बना दिया, बोल दिया कि अरे ये बच्चे यूज कर लेंगे. ऐसा नहीं होता है. बच्चों के लिए ग्राउंड्स ऑफ फॉर्मुलेशंस होनी चाहिए, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम और जो एक बड़े की प्रॉब्लम्स है वो बहुत स्पेक्ट्रम ही अलग है. लाइक वन इज दिस, वन इज दैट. तो आप क्या कर रहे हो, आप ये फॉर्मुलेशन के यू आर सेइंग कि आपने कुछ हटा दिया है, अब आप यूज कर सकते हैं, अब ये सेफ हो गया. लेकिन बच्चों को जो नरिशमेंट चाहिए उसमें तो आपने कहीं डाला ही नहीं. तो मतलब करता क्या है वो हटाने के बाद, जो वो करता क्या है, what we call that? तो इट कैन डू बेसिक जॉब, बेसिक फंक्शन. इट कैन डू द बेसिक की हाइड्रेशन करेगा, बट मे बी उतना मॉइस्चराइजेशन नहीं होगा. मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पे गलती पेरेंट्स की है. आप अपने बच्चों को ऐसा एजुकेट कीजिए कि भाई देखिए लेबल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी आपने देखा लिपस्टिक जो होती है, लिपस्टिक आप निकाल लेते हो, उसके ऊपर कहीं पे लिखा होता है कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट है? कभी देखा है? नहीं, लिपस्टिक के अंदर जगह का इंग्रेडिएंट लिखता ही नहीं लेबल. तो आप देख लो आपने क्या किया, बॉक्स से निकाल. होता क्या वैसे? बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 30-40 इंग्रेडिएंट्स होते हैं दैट गिव्स नेचुरल से लेके सिंथेटिक से लेके प्लस सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस होती हैं, सिंथेटिक पता नहीं और क्या चीजें, मतलब लिप ग्लॉसेस है, लिप बाम है, चैपस्टिक्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आप सोचिए एक लिपस्टिक जो आपने ली, उस पे उसके ऊपर इंग्रेडिएंट उसके बॉक्स पे होगा. वंस यू टेक इट आउट उस पे कहीं नहीं होता, कभी नहीं होता, और आपको पता ही नहीं चलता. काजल, लिपस्टिक, इन सब में अगर आप हेवी मेटल टेस्टिंग करेंगे और सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस, सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, पैथैलेट्स होते हैं, हार्मोन डिसरप्टर्स होते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं. बेसिक 4 कैटेगरी होती है, पैथैलेट्स, पैराबेन्स, सल्फेट्स और हार्मोन डिसरप्टर्स. इसके अलावा स्टेरॉइड्स भी होते हैं बहुत सारे में. वंस यू सी अ क्रीम विच इज़ वेरी लूसिड, उसमें बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स होते हैं. आपने एक बॉटल ली, उसके पीछे कोई भी कोड लिखा है ना, कोड या एब्रीविएशन फॉर्म है, आप उसको गूगल कर लो. इजीएस्ट वे. टीनेजर्स इज विटामिन सी, बिकॉज विटामिन सी के अराउंड काफी डिबेट हुआ है, और नॉट एग्जैक्टली टीनेजर्स, बच्चों को भी विटामिन सी लगा देते हैं. टू हैव एनीथिंग ऑन दैट? मैंने बचपन से नींबू रगड़ा है, वो तो नेचुरल है. नींबू रगड़ा है, नींबू खत्म हो जाता था, अब लाइक आई स्टिल हैव इट इन माय फ्रिज कि नींबू रगड़ना है, उससे आपका जो विटामिन सी एडिशनल आता है दैट एड्स ग्लो. सो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैज इवन टमेटो, पोमीग्रेनेट एंड आल्सो द नींबू. द आइडिया इज दैट टीनेजर्स कैन यूज इंग्रेडिएंट्स, बट यू शुड यूज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. सबके घर पे नींबू मिलता है. तो विटामिन सी का आर्गुमेंट ये है कि वो एक्ने बढ़ाता है, आपका क्या बोलता है, सेंसिटिविटी और बढ़ाता है, इरिटेशन बढ़ाता है, व्हिच कैन कॉज सम एलर्जिक रिएक्शंस ऑन द सेंसिटिव स्किन. तो इसलिए this debate is that no matter how natural it is, not every skin may have a suitable effect of the vitamin C, or you can say that anything which is related, even नींबू लगाने से भी. तो आप जो विटामिन सी की बात कर रहे हैं वो जनरली सिंथेटिकली डिराइव्ड होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट सूटेबल. तो आप कह रहे हो नींबू लगा कुछ होगा ही उसके, मतलब 99% देखिए लोगों को पानी से भी एलर्जी होती है, ठीक है, बट इफ यू फॉल इन दैट वन कैटेगरी वो अलग बात है. बट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आप यूज करें, दे आर नॉट डूइंग एनी हार्म. अगर आपकी स्किन पे इचिंग है, घर आते ही आप कुकुम्बर स्लाइस कट करके लगाइए. घर आते ही अगर आपको लगे कि यार टैनिंग बहुत हो रही है, नींबू लगाइए. बट नींबू लगाने के बाद आप धूप में नहीं जा सकते. यू कांट डायरेक्टली कम, बिकॉज वो इट विल इम्पैक्ट, वो पिगमेंटेशन करेगा. सो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अच्छे होते हैं, यू कैन यूज इट. मेजॉरिटी ऑफ इट डू नॉट फॉर्स अगर आप डायरेक्ट फॉर्म में यूज कर रहे हो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू नो कि वो एग्जैक्ट कैसे यूज करना है. लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है, लोगों को आधी बातें पता होती है, उन्हें पूरी बात पता ही नहीं होती है. जैसे एक्ने एंड एवरीथिंग है. अब टी ट्री ऑयल होता है, मेरे टाइम में माई मदर यूज टू गिव मी टी ट्री ऑयल, डिफिकल्ट टू प्रोक्योर, तो हम टी ट्री ऑयल 1% शी यूज टू मेक इट फॉर मी.
1% की कॉन्सेंट्रेशन में एक वाइल में मुझे दे देती थी. मेरे को पिंपल होता था. आई हैड अ वेरी ऑयली स्किन, आई हैड अ वेरी पिंपल प्रोन स्किन एंड एवरीथिंग. तो माई संडे वॉज एक्चुअली जब पापा और मम्मी मेरे पे थोड़ा सा केयर कर रहे होते. मेरे बालों में शिकाकाई रीठा लगा होता था और फेस पैक लगा रहे थे और वो टी ट्री ऑयल जहाँ जहाँ पिंपल था वहाँ लगाते थे. अगर मेरे पेरेंट्स को नहीं पता होता तो वो अगर मुझे डायरेक्ट देते थे तो मेरी स्किन जल जाती. बट दे न्यू दैट एज अ चाइल्ड आई कुड ओनली यूज दिस मच ड्रॉप एंड इन दिस कॉन्सेंट्रेशन. सो लॉट ऑफ द थिंग्स इज दैट पेरेंट्स आर नॉट अवेयर. उनको पता ही नहीं है. अब अगर आपको एक फोन दे दिया आईफोन बट आपको उसको चलाना ही नहीं आता तो आप क्या फायदा आईफोन का. SPF का जो कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, कितना SPF इंडिया के अंदर जरूरी है, और स्पेसिफिकली हम लोग भी दिल्ली NCR के अंदर रह रहे हैं, कितना जरूरी है? और जो SPF जो बच्चों के मुंह पे लगाते हैं 1-1 साल 2-2 साल, पता नहीं, जब से बचपन मतलब स्कूल भेजने से पहले एक जमाने होता था मेरे मुंह पे ग्लिसरीन लगाया जाता था, ठीक है ना. वैसलीन लगा, वैसलीन से पेट्रोलियम जली, वो लड़कों पे मुंह पे लगाते थे. आजकल की जो मदर्स हैं, माय वाइफ आल्सो, शी अप्लाइज SPF 50 ऑन माय डॉटर. एंड क्या हार्म कर सकता है एंड क्या है SPF का, थोड़ा सा आप इसको डिकोड करेंगे? So SPF का if you ask in a very layman term, it is sun protection factor. ये आपके पास प्लांट है, ये सन में है, इसमें भी SPF होता है. ओके. सो SPF इज इन ऑल द नेचुरल, काफ़ी सारे नेचुरल जो जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है ना, जितनी भी ट्रीज एंड एवरीथिंग, उनमें नेचुरल फैक्टर होता है. किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में करक्यूमिन या हल्दी, टर्मरिक, सब में होता है. छोटा छोटा होता है बिकॉज सन से प्रोटेक्शन सबको चाहिए, बीट प्लांट बीट ह्यूमन के अंदर ये प्रोटेक्शन फैक्टर होता नहीं, तो ये उन्हें एक्सटर्नली चाहिए होता है. नाउ कम्स टू द फैक्ट कि क्या रिकमेंड करती हैं बॉडीज एंड कितना होना चाहिए. तो पहले क्या होता था, जब बहुत पहले जमाने में ना सन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था, बिकॉज सन रेज की भी डिफरेंट वेवलेंथ होती है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूशन से इम्पैक्ट हुआ है. तो जो ओजोन लेयर पे जो इम्पैक्ट है उससे यूवी और UVA, UVB, UVC प्लस ऑल्सो द काइंड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द सन रेज जो आई है वो वेरी कर गई एवरीवेयर इन इंडिया इज वेल. तो अब आपको अगर अपने आप को सन रेज से प्रोटेक्ट करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज टैनिंग होती है, रेडनेस होती है, स्किन को इचीनेस होती है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है आपके कॉम्प्लेक्शन को एंड ऑल्सो लीव लॉन्ग टर्म डैमेज, पिगमेंटेशन वगैरह सब होती है. सो द पॉइंट इज दैट अगर आपको अपने आप को बचाना है तो यू नीड एन एक्सटर्नल SPF फैक्टर. ना वो SPF फैक्टर कितना होना चाहिए और क्या होना चाहिए, राइट? तो जो डॉक्टर्स डर्मैट्स रिकमेंड करते हैं फॉर चिल्ड्रन, सो दे से दैट SPF ऑफ 30 इज अ डिसेंट. अगर आप स्विमिंग और आपका ज्यादा एक्सपोजर है टू वाटर, क्योंकि आप स्विमिंग करते हो तब क्लोरीन है, क्लोरीन भी इम्पैक्ट करता है, तो यू नीड वाटर प्रूफ. और उस टाइम पे भी वो बोलते हैं कि 30 to 50 के बीच में आप यूज कर सकते हो. नाउ 30 और 50 क्या होता है, इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 मीन्स कि यार SPF 30 या 30 मिनट तक आपको बचाएगा. इसको जाने से एक्सपोजर से 10 से 15 मिनट पहले लगाना है. SPF 50 मीन्स ये 50 मिनट तक आपको बचाएगा और इसको जाने से 10 से 15 मिनट अप्लाई करने बाद लगाना है और आपको रीअप्लाई करना है जितने भी देर तक आप यू आर डूइंग दैट एक्टिविटी या यू आर इन सन. होता क्या है, लोग ना एक ही बार लगा लेते हैं, फिर बोलते हैं कि यार मेरा तो सनस्क्रीन काम ही नहीं कर रहा, मैं तो टैन हो गया, ये तो घटिया सनस्क्रीन है. स्विमिंग करने जाते हैं 2-2 घंटा करते हैं बट लगाते हैं, एक बार लगा लिया SPF 50, अब बोले 2 घंटे स्विमिंग की बट मैं तो भी सो मतलब द पॉइंट इज दैट SPF 50 30 to 50 का रेंज है. जितना ज्यादा है उसमें SPF, ये जो मैंने आपको बताया कि प्लांट डेराइव्ड एंड एवरीथिंग, ना SPF बनता किससे है, तो ये मिनरल बेस होता है और ये कुछ केमिकली सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो एक बड़ी कंपनी है, दिस इज नोन एज BASF, ये पेरिस में है. दे आर द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ रिसर्चिंग द इंग्रेडिएंट्स जो सब लोग, सारी कंपनीज अपने सनस्क्रीन में डालते हैं, हम भी डालते हैं. सो जो मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन होती है दैट इज जिंक ऑक्साइड होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, और अभी एडवांस मॉलिक्यूल्स आए हैं जैसे BASF के टिनोसोल, यूनिविब. तो वी यूज टिनोसोल, यूनिविब. ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स हैं. They have a specific percentage of these minerals. तो जो mineral base है, it is proven by studies that वो ना बच्चों में यूज कर सकते हैं. बट जो अदर मॉलिक्यूल्स वाले SPF फैक्टर्स हैं और अगर आपके उसमें डले हैं तो जरूरी नहीं है वो बच्चों के लिए सही है कि नहीं है, क्योंकि उस पर कोई रिसर्च नहीं हुई है. तो अगर आप सनस्क्रीन की बात करें तो बच्चों के लिए मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करना चाहिए. और जो वाटरप्रूफ अलग होता है, मिनरल बेस्ड अलग होता है. सारी सनस्क्रीन वाटरप्रूफ नहीं होती पहले तो बिकॉज जो वाटरप्रूफ होती है इट हैज टू फॉर्म अ वेरी क्रीमी लेयर
तो वो थोड़ी चिपचिपी हो सकती है। जो दूसरी डेली सनस्क्रीन होगी, जो धूप में जा रहे हो आप बाहर आने जाने के लिए, वो उसका बेस में क्रीम, एलोवेरा, बहुत कुछ हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो चिपचिपी हो। सो देयर इज़ अ वेरी बेसिक डिफरेंस, क्योंकि पानी के अंदर हमें प्रिवेंट करना है कि वो पानी और क्लोरीन अंदर भी ना जाए। बट जब आपकी दूसरा आपने लगाया नॉर्मल डेली के हिसाब से, तो यू जस्ट वांट प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन। तो ये वेरी क्लियर बेसिक बेसिक डिफरेंस तो ये हो गया। अब आई बात कि मेरे बच्चे को क्या लगाना चाहिए। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं अब SPF 30 एंड अबव, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट योर चाइल्ड हैज, यू शुड चूज द सनस्क्रीन, नंबर 1। सेकेंड, सनस्क्रीन हैज टू बी रीअप्लाइड, जो ज्यादातर पेरेंट्स नहीं करते। थर्ड सेम पॉइंट ऑफ टाइम इज कि मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द राइट सनस्क्रीन। ऐसा ना हो वाटर प्रूफ वाला आप दिन में लगा रहे हो और जो दूसरा वाला सनस्क्रीन है वो डेली का है, वो आप पानी में लगा रहे हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो या In your case, what was the what click moment? What click का मतलब ये कि सडनली आपके आंखों के सामने से अंधकार खत्म और आपको क्लियरली दिख रहा है कि अच्छा यही तो चीज करनी थी। That is something which is called the what click moment. So there were multiple, but I'm not going into the incident ki why I started, because वो एक basic है. basic है. But I'll tell you what actually clicked if I see from the company standpoint. So when we were building the first set of product, we were very confused कि हम safe chemical की रूट पे जाएं या हम आयुर्वेदिक रूट पे जाएं, बिकॉज दोनों के बीच में स्टार्क डिफरेंस है। कंपनी की पोजीशनिंग, कंपनी की ब्रांडिंग एंड कंपनी के प्रोडक्ट्स बनाने का नजरिया बहुत डिफरेंट होता है। 2 सेपरेट स्ट्रेटेजिक वेज है। तो when we built couple of products in Ayurvedic, we built couple of products in good chemicals वाला कैटेगरी, then we took a loss कि हम वो वाले मोड में नहीं जाएंगे जहाँ पे गुड केमिकल्स हैं, बिकॉज हमें ये क्लियर हो गया कि यार एज अ पेरेंट मे बी मेरे बच्चे को नहीं समझ आ रहा कि आयुर्वेदिक क्या इंपॉर्टेंट है, बट एज अ कंज्यूमर फॉर मी इट बिकम्स मच मोर इजी टू सेल अ प्रोडक्ट अगर वो आयुर्वेदिक इन नेचर है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई डू अ कंपैरेटिव कंपैरिजन एनालिसिस एंड एवरीथिंग, यू डोंट हैव लॉट ऑफ कंपनीज दैट आर taking rooted Indian traditional values and making it Gen Alpha ready. So that was my what clicked moment कि it's okay to take a loss, क्योंकि हमने तब हमें इतना clarity नहीं थी, but now we are very clear कि we want to make it Ayurvedic, and we want to make sure that हम Ayurveda को promote करें as a Indian tradition in the Gen Alpha. तो ये what click movement आपके स्टार्ट होने से लेके कितने टाइम के बीच में आया? This actually came after, I think, product land हो गई थी. It came between 8 to 9 months. Product आ गई थी दोनों हाथ में. अच्छा तब जाके समझ आया कि ये करना है. हाँ, बट हमने ऑलरेडी ऑर्डर्स थे, प्रोडक्ट लैंड हो चुकी थी, तो वो वाला ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते थे. We had to honor the commitment made to the manufacturers and the formulators, right? And because of that decision, you're where you are today. Yeah. तो अगर हमें बच्चों को केटर करना है, बच्चों की स्किन को वही नरिश करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो वी नीड ब्रांड्स हु केयर फॉर देम. इंडिया में आज की डेट में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो बच्चों की स्किन पे रिसर्च कर रही है. देयर आर नॉट मेनी R&D लैब्स एट ऑल, इवन इन द ग्लोबल स्टेज. देयर आर वेरी फ्यू. आयुर्वेदिक कर रही हैं, मैंने नहीं सुना है. सो वी वांट टू बी दोज पायोनियर्स वेयर वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम in studying how Ayurveda can help the kids ka segment. That's amazing. Superb. Yeah, I mean, it was amazing to have this conversation with you, and those who are watching this, those who are parents whose children are between the age of 13 to 14, please try the products by Mishmash. And मेरे को तो already मिल चुका है, तो फिर I will be definitely using that. So again, this podcast was only for the education purposes. अगर आपको लगता है हमारे founder का दम है, please do follow our channel as well. Mishmash Naturals. So thank you so much for being here. It was an amazing conversation which we had.